भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। जी, हमारा फैक्ट्री जो है वो आज की डेट में 12,000 टन पर डे कैपेसिटी का है। तो 12,000 टन गन्ना हम लोग दिन में कर सकते हैं। अच्छा, तो just now we have expanded the yes. तो आज की डेट में हमारा क्रशिंग कैपेसिटी 12,000 टन्स पर डे है। Okay. We have expanded right now for this season only. हाँ, So next year we will run by continuously by 12,000 tons per day. हाँ। We are having 36 megawatt cogeneration facility at our site. Okay. We are having 142 KLPD, 1,42,000 liters of ethanol we can produce over here. 36 megawatt means you can understand 36,000 units per hour. अच्छा, 36,000 units per hour. Hardly one home consumes hardly 300 units per month. One house, one domestic yes. house is consuming 300 units per month, and we are producing 36,000 of units per hour. So it's a huge project. Altogether, it's a complex actually. It's a complex, not a sugar industry. It's a complex. It's having a cogeneration facility. It is having a distillery. We are having a 60-bedded hospital, multi-speciality hospital. We are having industrial training institute over here, ITI. We are having the polytechnic. We are having the society over here. Okay. Then we are having Datta Bhandar. The Grahak Bhandar is there, just like a small mall. Yes. Then we are having a Kusti Sankuul. We are having a running track. And by and large, we are being a cooperative sugar factory. We are extending our every help toward the nearby villages. So the motto is to elevate the socio-economic development of the rural area. And this is a company is having a owner around 32,000, which are the sugar cane farmers only. Okay. ये जो इसके मालिक है वो 32,000 है, जो खुद गन्ना किसान है. There is no 1 to 10 owners. Okay. All 32,000 owners are there, and they are came together. They have raised fund and they have started this company. Okay. So the ownership of this factory goes to the Ganna Kisan only. Okay. Miracles. So we are here on behalf of our sugar cane farmers. We are working on behalf of the farmers. So the beauty of the cooperative sugar factory is to run the factory for the beneficiary of the entire society nearby the sugar factory. आपका परिचय। हाँ जी, आई एम कम फ्रॉम पोरबंदर, गुजरात। हिंदी में चलेगा। आई एम कंफर्टेबल। हाँ, तो मेरा नाम जिग्नेश छेलावड़ा है जी, और मैं गुजरात के पोरबंदर शहर से बिलोंग करता हूँ और ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूट में 17 साल से सेवाएं दे रहे हैं। जी जी जी। और जैसे आपने, हाँ जी, आपने जैसे बताया कि नॉट ओनली ए शुगर प्रोडक्शन, तो बस मल्टी फैकल्टी में आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं जी। तो इस तरह ही हम ब्रह्मा कुमारी में
not only Rajyog meditation. With Rajyog meditation, social activity included health level services and advocates and extra other many activities are included in this Brahma Kumaris. पिछले 5 साल से खास करके मैं स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में महाराष्ट्र हो या फिर पंजाब हो या फिर गुजरात हो, सभी प्रांतों में हम जाते हैं जी। लोगों के शिविर लगाते हैं वहाँ जी, और लोगों को खास करके विदाउट मनी, विदाउट एक्सरसाइज एंड विदाउट मेडिसिन स्वास्थ्य प्राप्ति कराते हैं। और 5 दिन कौन है रे? तो 5 दिन में या 10 दिन में उनका आहार जो वो खाना खाते हैं उनको चेंज करवा के, उनका कोई भी प्रॉब्लम है हेल्थ लेवल का, कोई भी एनी टाइप्स ऑफ अनक्योरेबल या फिर क्योरेबल जो भी डिजीज है, उनसे उनको मुक्ति पाने का रास्ता बता देते हैं जी। और लोग उनके लिए ज़्यादा समय नहीं लेते, 1 महीना 2 महीना ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना, उसमें तो उनको इतने चमत्कारिक परिणाम मिल जाते हैं जो कब्ज से लेकर कैंसर तक सारे रोगों में ये हीलिंग फास्ट करता है। उसमें खास करके हम 3 चीज़ें इस्तेमाल करते हैं लोगों को जी। एक एनिमा जी, संजीवनी क्रिया जिन्हों बोलते हैं, तो सिंपल प्लेन वाटर का एनिमा सुबह शाम लेना पड़ता है। फिर सुबह 4-6 घंटा जितना रह सके उतना निर्जला वाटर फास्टिंग करना पड़ता है, पानी भी नहीं। और तीसरा हरी पत्तियाँ जो पालक, पुदीना, धनिया, ऐसी कुछ पत्तियों का एक जूस पूरे दिन में लेना है। जैसे हम चाय की पत्ती रोज ले रहे हैं, उनको छोड़कर उनके बदले ये हरी पत्तियाँ यूज करनी है। तो मतलब कि हरी पत्तियाँ, धनिया हो, पालक हो, मेथी हो, कुछ भी हो, उसको खाली मिक्स करना है, मिक्सर में लगाना है, आवला डालना है। एक पुस्तक है जी, आपण शिंदे सरांकडे देतो किंवा आपण आपले सेंट्रलाइज या तिथे थोडीशी माहिती घेऊन, आता आमच्या पुढच्या महिन्यामध्ये 5 दिवसाचा सेमिनार लागणारच आहे, जे याचे गुरुजी आहे चव्हाण साहेब जयसिंगपूरमध्ये। बरोबर, ते 8 मार्च ते इथं शिरोळला जे आपलं सेंटर आहे ना बहीणजी, हो, त्यांच्याशी आमचा बऱ्यापैकी संबंध आहे। दरवर्षीचा रक्षाबंधनाचा कार्यक्रम बाय डिफॉल्ट न चुकता आपल्याकडे होतोय। जवळपास त्या बहीणजी येतात, आमच्या 400-500 लोकांना राखी बांधतात। इथं राजयोगचा बाकायदा आमच्याकडे 8-9 दिवसाचा जो तुमचा कोर्स असतोय, तो काय 9 काय 11 दिवसाचा, 10 दिवसाचा आहे काय, तो 10 दिवसाचा 2 वेळा इकडे आपल्याकडे झालाय। तर मग त्यांच्याशी आम्ही कनेक्टेड चांगले आहोत। हे थोडे हेच आपली तब्येत पण चांगली पाहिजे ना, और हेल्थ है तो सब कुछ है हमारे लिए। सेहत है। आप मुझे बोल रहे थे कि सुबह चाय के बदले 4 घंटा फास्टिंग करके बाद में हरी पत्तियों का जूस आंवला के साथ मिला के पीना है। आंवला मतलब कि हरी पत्ती यानी कि पालक, पुदीना, धनिया और सहजन है, कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता कुछ भी चलेगा। हाँ, उसको क्या करना है, उनको ग्राइंड करके मिक्स करके और थोड़ा सा पानी उसमें मिला देना है। फिर उसको छन्नी में छान कर 1 गिलास बना लेना है। और उसमें थोड़ा सा बहुत वो भी डाल सकते हैं, सेंधा नमक है, लेमन है, अदरक है, उनसे थोड़ा सा और वो टेस्टी बनेगा। और ये हर रोज पियेंगे ना तो एक तो हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, वायरल इन्फेक्शन तो लगने वाला ही नहीं है, और ब्लड का शुद्धिकरण भी होता है। काफ़ी मल्टी बेनिफिट्स हैं उनके। और दोपहर में कभी लंच में पका हुआ खाना हम टोटली बंद करवाते हैं। तो प्लीज़ आप कुक्ड मील लंच में मत लीजिए, आपकी एफिशिएंसी कम होती है, बढ़ती नहीं है पका हुआ खाना दोपहर में लेने से। तो जो भी पका हुआ ले लेते हैं तो 15 मिनट आराम करने की इच्छा होती है, हम पूरी एफिशिएंसी के साथ दौड़ने नहीं लगते हैं। मतलब खाना शक्ति नहीं देता, शक्ति खींचता है दोपहर के बाद। तो दोपहर में हम किसी को भी अलाउ नहीं करते। अगर पका हुआ खाने की बहुत तमन्ना है, हम तो पिछले 5 साल से सिर्फ कच्चा भोजन ले रहे हैं, उसमें सलाद, सब्जी और फल, लेकिन ये आदत छोड़नी थोड़ी मुश्किल है। तो रात को अगर आप पका हुआ भोजन खाना चाहते हैं तो इस समय पर खाइए कि जिसके बाद सीधा लेटना ही हो। कोई खाने के बाद चलने के लिए चले जाते हैं, तो ये गलत चीज है, बिल्कुल गलत है। भोजन के बाद विश्राम ही करना चाहिए, डाइजेशन प्रॉपर हो। तो रात में, दिन में प्रकृति में जो मिलता है वो इस्तेमाल करें,
रात में कुछ बीवी दे वैसा कुछ खा ले, तो आपका हेल्थ एकदम प्रॉपर सेट रहेगा। और खास हम दूध की आइटम सारी बंद करवा देते हैं। ओके। दूध, छाछ, घी, मक्खन, पनीर, दूध के मेवा, मिठाई, वो सब कुछ बंद करवाते हैं, क्योंकि मिल्क इज ए वाइट पॉइजन, हम ऐसा कहते हैं। हमारे लिए पॉइजन है, बछड़ों के लिए, उनके गाय के भैंस के बछड़ों के लिए वो अमृत तुल्य है, लेकिन हमारी ये सिस्टम के साथ वो मैच नहीं होता है। उनका कैल्शियम हमें किसी भी काम का नहीं है। हमारा कैल्शियम सहजन की पत्तियों में है, पालक की पत्तियों में है, केले में है, ये कैल्शियम हम शूट कर पाते हैं। ओके। हाँ, तो और गेहूं खास करके बंद करवा देते हैं लोगों के। सफ़ेद चीज़ें जो भी हैं, मानो कि मैदा है, तो बेकरी आइटम भी पूरा बंद करवाते हैं। और जो नमक है, दरियाई नमक, सी सॉल्ट को भी टोटली बंद करवा देते हैं। और शुगर, तो शुगर भी हम ऐसा कहते हैं कि अब लोग, डॉक्टर भी कहते हैं कि ज़्यादा शुगर लेने से तो क्या होगा, एनीथिंग एक्सेस इज ए पॉइजन। हाँ, उसको बहुत अल्प मात्रा में या कम मात्रा में ले तो इतना बैडली इफेक्ट वो नहीं करेगा, लेकिन जो लोग धीरे धीरे करके समझ जाते हैं तो वो सी सॉल्ट भी छोड़ देते हैं और शुगर भी सदा के लिए छोड़ देते हैं। अभी मैं आपको गन्ने का जूस पिलाने के फिराक में था, तो आप कैसे पूछोगा कि गन्ने का जूस पिएंगे या नहीं पिएंगे? पी सकते हैं जी, जूस पी सकते हैं। वो बात पे हम आते हैं कि जो नेचुरल शुगर है, ओके, वो नेचुरल शुगर इज नॉट हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। जो मैन मेड है, क्योंकि मैन मेड में क्या होता है, थोड़े से केमिकल्स ऐड किए, कुछ प्रोसेस किया, उनको हाई टेम्परेचर के ऊपर ले गए। तो जब किसी भी चीज में, गॉड मेड चीज में प्रोसेस होता है ना, तो उससे बीमारी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आणि बाकीचे दोघं जण कुठे आहे? जरा 86-032चा स्वच्छ ऊस आणा, घाणा एक 5-6 बादल्याने प्यायच्या पाण्यानं धुवा आणि रस काढा सगळ्यांना। कई लोग डायबिटीज वाले आते हैं तो उसको 10-10 दिन शिविर लगाते हैं, उनको गन्ने का जूस सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम पिलाते हैं डायबिटीज वालों को, और आफ्टर 10 डेज उनका डायबिटीज कंट्रोल में आ जाता है। मुझे तो आज तक डायबिटीज नहीं है, शुगर नहीं है, कभी कोई ऊपर वाले की मेहरबानी। हाँ, ऊपर वाले की मेहरबानी है। लेकिन आज की डेट में आप आए, इतना अच्छा बताया, तो बेकरी प्रोडक्ट, मैदा, शुगर, दूध, हाँ, मीट, चाय और कॉफी, हाँ, आज की डेट से मैं आज ही बंद कर देता हूँ। यस, आज ही बंद कर देता हूँ। काय करा, ते बीवी चव्हाण साहेब येणार आहेत ना 8 मार्चला, 5 दिवस जयशिंगपूर आहे, एक 10 ते 15 मिनिट त्यांच्यासोबत बसूया, आणि आपल्या हेल्थ साठी पण आणि समाजासाठी तर आपण कुठं जयसिंगपूर, आपण आपलं नाव काय सर? उत्तम भाई म्हणतात सगळे। उत्तम भाई, अच्छा। आपल्या शब्द म्हणजे राहायला तुम्ही जयसिंगपूरलाच आहे? म्हणजे प्रॉपर तुम्ही जयसिंगपूर? शिरोळमध्ये पण येतोय आम्ही। उत्तम भाई, बर। ब्रह्माकुमारी आणि ब्रह्मकुमारी असे दोन असतात। एक मिनिट, मला जर नंबर सांगा। 9270 165 411। ओके साहेब, आपल्याकडे अशोक सर आहेत ना? बर, त्यांचे सख्खे कझिन चुलत होय काय? हे सर ते भाईंचं आमच्या 2017ला 93 वजन होतं, 93, आता 60 पर्यंत झाले त्यांचं या नवीन भोजन प्रणालीमुळे। बरोबर। आणि रोग तर भरपूर होते। I have also arthritic patients, spinal problems, frozen shoulder, back pain, knee pain, everything damage, and also skin patient I have also, psoriasis disease है, तो उनसे 12-13 साल सफरिंग में रहा। तो ये सारे के सारे रोग दवाइयाँ लेने से, पथियाँ, थेरापियाँ, सब कुछ कर लेने से कुछ भी बात नहीं बनी, और लोगों की बन नहीं रही है। हम देख रहे हैं मेडिसिन खा रहे हैं, वो लाइफ टाइम खा रहे हैं। और मैंने ये यूट्यूब पे थोड़ा ये इनके बारे में सुना, 1-2 लेक्चर सुने और अप्लाई करना शुरू कर दिया। 6 महीने तक कच्चे भोजन के ऊपर रहा। जब भी भूख लगे केला खा लिया, ग्रेप्स खा ली, लेकिन रोटी, सब्जी, दाल, भात सब अवॉइड कर दिया। 6 महीने में सारे के सारे रोग जो हैं वो पत्तों की तरह ढल गए नीचे, पूरा एकदम हेल्दी, हैप्पी। और मेरा वेट भी 93 से सीधा 63 के ऊपर आ गया। और मैं क्रिकेट खेलता था, 25 साल तक खेला, बाद में स्टॉप हो गया 10 साल तक, इतना वजन होने के कारण। बाद में अब फिर से खेल रहा हूँ,
43 इयर्स रनिंग। तो ये एनर्जी न खाने से आई, खाना हमें खत्म कर देता है और न खाने से एनर्जी आता है, इसमें मेरा बहुत ज्यादा विश्वास है जी। क्योंकि मैं सुबह आधा जवार का रोटी और जो भी सब्जी घर में बनता है वो खा के आता हूँ। टिफिन में अभी मेरा टिफिन चेक करेंगे तो आधा जवार का रोटी और बरोबर कौन सा भी जो सब्जी घर में बनता है, हाँ बरोबर है। और शाम को आधा जवार का रोटी और सब्जी और थोड़ा राइस खाता हूँ। हाँ। मतलब दिन भर मैं हार्डली 1.5 जवार का भाकरी और एक टाइम ही राइस खाता हूँ। बरोबर। तो उसके बावजूद अच्छा। मुझे कभी सुबह 5:15 बजे मैं उठता हूँ, शाम 11:30 बजे सोता हूँ। अच्छा, तो मुझे इतना? कभी ऐसा नहीं लगता है कि मैं थका हूँ। मैं इन बच्चों से कहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ किसी भी चीज का, आप स्विमिंग करो, जॉगिंग करो, साइकिलिंग करो, क्रिकेट खेलो, मेरे साथ कभी भी खेलो, मैं तुमको हराऊंगा। वेरी गुड। तो मैं आपको बताता हूँ कि कम खाने से, हाँ क्योंकि जितना कैलोरी जरूरी है उतना खाना, इतना तो समझ सकते हैं, उससे ज्यादा खाना फिर उसको क्या करेंगे। जी। उसके लिए एक हिंदी में कहावत है कि थोड़ा खाया तो ज्यादा पाया और ज्यादा खाया तो सब कुछ गवाया। तो इस तरह से आपका शेड्यूल नहीं, मैं आपसे, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ, क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ कि कम खाने से एनर्जी बढ़ती है। जिस टाइम पे रात में, तो कभी मैं रात में सपोज 9 बजे के बाद में अगर कुछ खाना पड़ता है तो मैं खाना, मतलब कि 10 बजे खाना खाया ऐसा कभी होता ही नहीं है। 10 बजे तक नहीं खाना खाता हूँ तो सीधा मैं खाना स्किप कर देता हूँ। अच्छा। और सर एक मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा जी। इतनी बड़ी एकदम एट्रैक्टिव और देखने लायक और बढ़िया हम इम्प्रेस हुए यहाँ की जो शुगर का पूरा मेंटेन किया हुआ है। तो ये शुगर इंडस्ट्री में आप काम करते हैं बड़ी जिम्मेवारी के ऊपर, तो आप शुगर का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं अपनी लाइफस्टाइल में? देखिए, अभी लाइफस्टाइल में तो बहुत कम टाइम में शुगर मैं खाता हूँ, तो चाय के द्वारा शुगर जाती है, या घर में कुछ मीठा बनता है तो मीठे के साथ में शुगर जाती है। मेरे लिए बात कर रहा हूँ। हाँ जी। अदरवाइज शुगर, मैं बेकरी प्रोडक्ट बहुत कम खाता हूँ जी। बेकरी प्रोडक्ट ज्यादा मैं खाता ही नहीं। बराबर। तो शुगर जाता है 2 ही फॉर्म में जाता है, या तो चाय के साथ जाता है या फिर कुछ स्वीट बनाया। तो बाहर से मंगाया हुआ स्वीट भी मैं बहुत ही कम खाता हूँ। बराबर है। मतलब जितना हो सके उतना थोड़ा सा अवॉइड करना है। तो इस तरह से जीवन में बनने वाली कोई भी चीज जिनमें आदमियों का दिमाग लगता है, आग लगती है, ऐसी हर एक चीज कोई भी सात्विक नहीं है, वो एसिडिक है और वो सिर्फ और सिर्फ बीमारी के अलावा वो कुछ दे नहीं सकती। एसिडिटी तो जब से मैंने आपको बताया कि जब से मैंने, बहुत साल हो गए मेरे, कम से कम 15-20 साल हो गए मेरा आहार जो है यही है। तो एसिडिटी का गोली मैंने इस 15 साल में कभी खाया ही नहीं। अच्छा। खाना ही कम है तो एसिडिटी होने का सवाल ही नहीं। बरोबर है, सही बात है। तो मैं हर रोज मैं एक्सपीरियंस करता हूँ ये। बहुत बढ़िया भाई जी। अभी पिछले 15-20 दिन से ये सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि लोग बार बार कह रहे थे कि थोड़े सा वजन घटाओ। तो आपका 15-20 दिन का एक्सपिरियंस इन शॉर्ट सर को बताएंगे? आपलं नाव काय सर? हाँ। बरं, आपण कुठं राहता? काय करताय साहेब? मी रिटायर्ड चिफ मॅनेजर. बरोबर. अच्छा. तर ॲक्च्युली माझं वजन पण खूप वाढलं. आता असं माझं ते लाईफस्टाईल होती ती बसायची होती. मॅनेजर बनल्यामुळं थोडंसं मॅक्झिमम जास्त वेळ पळायचं, त्याच्यामुळे ते वेट खूप वाढलं. त्यानंतर मग ह्यांचं जे ऐकलं मी, न्यू जीवन भोजन प्रणाली, थोडंसं मग जसं माहिती घेऊन सुरू केलं. 15 दिवस झाले. 15 दिवसामध्ये यांनी जे सांगितलं त्या पद्धतीनं आहार पद्धती घेतो. म्हणजे आता मी पक्क काय शिजवलेलं काही खात नाही. 15 दिवसांमध्ये सकाळी 6ला उठतो, नंतर 6 तासाने ज्यूस घ्यायचं, ग्रीन ज्यूस, नंतर 2 तासाने फळं आणि संध्याकाळी सॅलेड, एवढंच जेवण. 15 दिवसामध्ये माझं 6 किलो वजन होतं आणि एकदम आता हेल्दी फ्रेश. दुपारी झोप यायची, आता झोप येत नाही. 63 रनिंग आहे माझं. आता दुपारी झोप येत नाही, दिवसभर फ्रेश असतो आणि एकदम आता मस्त वाटतं. कम खाने का फायदा जरूर है कि आदमी चुस्त रहता है। हाँ।
एकदम आणि नंतर मग आम्ही ब्रह्माकुमार शाळेमध्ये जे सुरुवातीला 1 तारखेला हा प्रयोग सुरू केला, त्यामध्ये सुरुवातीला 10-15 लोक यामध्ये इन्व्हॉल्व झाले. त्यामध्ये 4 लोक शुगरचे होते. शुगर टोटली त्यांचं निल आहे, आता नॉर्मल शुगर आहे. त्यामुळं कसं आहे, 8-10 दिवसामध्ये रिझल्ट मात्र आहे. नाही येतात सर, येतात. कमी खाण्याचे रिझल्ट 100% येतात. आपण नको तेवढं खात राहतो आणि मग कॅलरीज वाढत जातो, हा वाईट अनुभव आहे. आणि मग ते साठत जाते आणि वजन वाढते. उसमें एनिमा का रोल महत्वपूर्ण है. जो गलत खाया ना उनको निकालना जरूरी है. विदाउट एनिमा अगर हम कच्चा खाते रहेंगे ना तो बहुत लंबे समय के बाद ये परिणाम मिलते हैं. और एनिमा के साथ तो 30 दिन में 60 दिन में जो भी परिणाम पाने हैं वो तुरंत मिल जाते हैं. और उनकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, क्योंकि हम दवाइयाँ यूज नहीं कर रहे हैं, प्लेन वाटर डाल रहे हैं उसमें. और इनसे आंतों को सफाई कर लेंगे. इतने सारे वीडियो भी हम डालते हैं कि किस तरह से लेना है, क्या फायदे क्या है. तो इस प्रकार से लोग 5 से 6 लाख लोग हमसे जुड़ चुके हैं इस अभियान में, ऑनलाइन ऑफलाइन. पोरबंदर खास करके सभी लोग रूबरू आते हैं, बाकी सब फोन पे. पानी दिन में कितना आप पीना चाहिए? हाँ, कितना पीना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करेंगे? अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस 2 लीटर 4 लीटर ऐसे पैरामीटर्स हमने सुने हैं डॉक्टर के पास से या कोई पानीपति वाले मास्टर के पास से. लेकिन एनडीएस क्या कहता है कि एनडीएस में एक प्रिंसिपल है, एनडीएस, हाँ जी, न्यू डाइट सिस्टम, नई भोजन प्रथा, एनडीएस. और हम उनको ये कहते हैं नए दिन की शुरुआत, एनडीएस, नए दिन की शुरुआत. अगर आप जीवन में नए दिन की शुरुआत और लाना चाहते हैं तो एनडीएस से जुड़िए आप. ऐसी ये सुंदर प्रथा है. हाँ, तो जब लोग हमसे जुड़ना शुरू हुए, मैं खुद ठीक हुआ, मेरी वाइफ ठीक हुई, और बाद में पूरा ये कारवा चलता गया. और एक के बाद एक पोरबंदर में सारे एडवोकेट है, डॉक्टर हैं, बड़े बड़े जो भी हैं, छोटे लोग जो खर्च नहीं कर पाते हैं, वे सिर्फ 1 घंटे का मैं कंसल्टिंग करता हूँ, उनको निःशुल्क देता हूँ, निःशुल्क सेवाएं. और आफ्टर 15 डे, आफ्टर 13 डे वो क्योर होके आते हैं. और आज मुझे पोरबंदर में, आई एम ए केमिकल इंजीनियर, बट मुझे डॉक्टर ऑफ डॉक्टर कहते हैं पोरबंदर में, क्योंकि सभी ठीक हो रहे हैं अच्छे तरीके से, खुद को परिवर्तन करके. तो मैंने सोचा कि अभी ये अभियान सिर्फ पोरबंदर के लिए लिमिट्स में नहीं रहेगा, बियॉन्ड पोरबंदर, बियॉन्ड कंट्री हम इनको फैलाएंगे. और इससे हमें एक चीज़ मिलती है. कोई लोग कहते हैं कि आपको कुछ मिल नहीं रहा है, ना कोई पैसे की, तो आपका व्यवहार कैसे चलता है, पैसे तो चाहिए. लेकिन लोगों का प्यार हमें इतना मिला है, लोगों की ब्लेसिंग इतनी मिली है कि उनका जो इंजॉयमेंट हम रियल लाइफ में डे बाय डे फील कर रहे हैं ना, वो तुलना किसी से भी नहीं हो सकती, क्योंकि डॉक्टर पे जाना ही बंद करवा देते हैं. तो ऐसी मैजिक सिस्टम है. पाण्याच्या बाबतीत पानी कितना पीना है? हाँ, पानी जो है वो जितना भूख लगे उतना खाना है, प्यास लगे उतना पीना है. ये प्रिंसिपल है. यही सही है. हाँ, अगर कोई कच्चा भोजन पूरा दिन ले रहा है, हाथ कम हाथ बाहर से बाहर ला. पूरा दिन कच्चा भोजन ले रहा है तो उनको पानी ऑब्वियसली कम चाहिए, अल्कलाइन बॉडी हो गया. इसलिए जो भजिया खा रहा है, समोसा खा रहा है, पकोड़े खा रहा है, उनको 1 गिलास के बदले 4 गिलास चाहिए. तो बॉडी डिमांड करेगा कि प्लीज मुझे पानी दो वरना मैं मर जाऊंगा, मेरे को एसिडिक से अल्कलाइन के ऊपर लेके आओ, न्यूट्रल करो, जल्दी करो. तो वो लोग ज़्यादा पी लेते हैं. उनको हम कहेंगे कि आपको 1 लीटर से ज़्यादा नहीं पीना है, तो उनको नुकसान करेगा, उनको 4 लीटर चाहिए. और हम जो सप्ताह एक इतनी बोतल लेके गुजरात से निकले थे, 36 घंटे तक यहाँ आए, 3 लोग थे, उसमें आधी बोतल बची थी. मतलब बीच में कलिंगर खा लिया, केले खा लिए, जूसी फ्रूट ग्रेप्स खा ली, तो उससे पानी मिल जाता है नेचुरली. तो उनके पैरामीटर नहीं. कोई कहता है कि कितने बजे खा लेना चाहिए, मैं कहता हूँ खाने का कोई टाइम नहीं है, रात को 2 बजे. हाँ, आपको भोजन या पानी उसी टाइम पे पीना है. जब प्यास लगती है तो पानी पियो, भूख लगती है तो खाना खाओ. और जितना खाना खाओ, उतना खाना कितना खाओ
जिससे कि उससे कम बहुत ज्यादा आपका पेट भरता है। हाँ, उससे मतलब कि पेट भरने से नीचे आप 20% खाओ। हाँ, सही सही बात है। अभी कल भाई जी बोल रहे थे कि चबा कर खाना है, दबा कर नहीं खाना है। अब दबा कर खाते हैं, इसलिए बढ़ रहे हैं हम। सही है, एकदम सही। चबा के खाना है। चबा स्लोली। नहीं, मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है सर। हाँ हाँ हाँ, जब आप चबा चबा के खाते हो तो आपका खाने का डिमांड ऐसे ही 50% नीचे आता है। सही बात है, सही ये बात मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जी जी जी। नहीं, आप जितना ज्यादा चबाओगे उतना आपका कंजम्पशन ही नीचे आए। मतलब कि आप सपोज 2 रोटी खाते हैं तो आपका हाँ हाँ, आप लीजिए प्लीज। ना त्याचं शास्त्र पण त्यात सांगितलं की जेवढं बारीक जाऊन खाल्लं ना तेवढे लाड निर्माण झाले की ऑटोमॅटिक भूक कमी होते. त्याचं काहीतरी लॉजिक आहे. आप बैठिए। हाँ, तू नहीं है ये इधर। अरे इधर नहीं प्रेम पेक्षा काय मी रसात 12,000 टनाचा रस दररोज रसातच आहे. प्रोडक्शन मध्ये जायचं पूर्ण इतिहास हे चालतं, काय प्रॉब्लेम. आप पूरे दिन में गन्ने का जूस हर रोज पीते हैं या फिर कोई कोई बार? नहीं, मैं ऐसे ही कभी कभार अगर गेस्ट आता है वो पूछते हैं कि यार आप नहीं लोगे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि उनके नहीं गिल्टी नहीं हुई, शायद उनके ध्यान में ऐसा है कि ये नहीं पी रहा है तो मुझे पीने के लिए सेब है या नहीं है, तो उनके दिमाग से निकालने के लिए मैं पीता। ये कौन है रे बंडा? अरे कर ये रही आणि जरा घेऊन ये रे बाळा, जगातलं घेऊन ये. हमारे साथ ये बहनें हैं, वो पिछले 3 साल से सिर्फ और सिर्फ जूस फॉर्म ज्यादा ले रही है पूरा दिन में. तबीयत के से मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि वो क्या कर रही है. 10 साल से माइग्रेन की तकलीफ थी इनको और गायनिक प्रॉब्लम भी काफ़ी जूझ रही थी वो, और उनका वेट भी 30 के आसपास था, 30 के आसपास. तो मतलब हेल्थ में पूरा 0 पड़ी हुई है. मैथ्स और साइंस की बीएड टीचर बनी है वो, लेकिन बीना बेन क्या करती है अभी? वो टीचर मैथ्स और साइंस में बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन, वो उसने किया है. लेकिन न उनका वेट बढ़ रहा था, न उनका सिर दर्द जा रहा था, न उनके गायनिक प्रॉब्लम जा रहे थे. तो आफ्टर 3 मंथ सारे के सारे हील हो गए और तब से हमारे साथ हैं 3-4 साल से. दोनों टाइम कच्चा भोजन ले रही है, तो 30 kg के आसपास से वो अभी 42 के आसपास पहुंची है. मतलब वेट कम भी होता है, बढ़ता भी है, बैलेंस होता है, बैलेंस होता है. ये सिस्टम है हमारी. और ये बताओ वो कितना आइटम बनाती है ऐसे क्या? हाँ, हम जहाँ सेमिनार लेने जाते हैं ना, कोई 50, 100 या 200 लोग भी होते हैं, तो इसको देख के सभी कहते हैं कि ये लड़की एक पूरा गिलास भी नहीं उठा पाएगी, और वो पूरे वो होते हैं ना 100 लोगों के बर्तन बड़े, वो उठा के भी रख देती है और पूरा दिन नॉन स्टॉप काम करती रहती है. तो मतलब एनर्जी है, उनका लेवल बढ़ता है. और कहा जाता है कि मोटा देख के डरना मत और पतला देख के भीड़ना मत. तो जो एनर्जी चीज अलग है, शरीर चीज अलग है, वो है. वो आइटम जो बनाती है वो बताइए. क्या जो आइटम बनाती है ना, आइटम? हाँ, बनाती है वो कितना बना सकती है? जो रेसिपियाँ लोग एक अक्सर ऐसा कहते हैं कि यार ककड़ी टमाटर 2 दिन अच्छे लगेंगे, गन्ने का जूस 2 दिन अच्छा लगेगा, फिर हम बोर हो जाते हैं, भजिए वड़े ये नहीं मिलते हैं. तो हम उनको 200 आइटम तो ये लोग जानते हैं. नहीं, इसमें आपको खट्टा, तीखा, मीठा सारे टेस्ट मिल जाते हैं. हमारी रेसिपियाँ आप देखेंगे. हाँ सर, और हमें एक सपोर्ट ये भी कीजिएगा कि हमारी चैनल जो डिवाइन लाइफस्टाइल NDS है यूट्यूब के ऊपर, उनको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. डिवाइन DIVINE डिवाइन लाइफस्टाइल NDS. हाँ, उनको भी सब्सक्राइब
कधी पण आपल्याला वाटलं की समजा रविवारची सुट्टी आहे, थोडंसं फ्री आहे, वेळ 10 मिनिटं मला काय पाहिजे, कन्सर्ट पाहिजे, तर आपण त्यांना फोन करू शकतात. त्याचा नंबर पण त्याचा नंबर. आता तो जर नेणार असाल, कुठं नेणार आहात? पण तुम्ही आता पटदिशी जायचं आणि 1 तासाच्यात द्यायचं, 1 तासानंतर अलाउड नाही. ठीक आहे, तो उचलून टाकायचं. ओके काय ते साहेब आपला पण नंबर देऊ शकतो. 97 67 57 37 67. प्रोग्रामची मी पत्रिका तेवढी पाठवतो. नक्की सर. 5 वर्ष होता. 5 वेळा. हो 5 वेळा. सर आता यंग जनरेशन नॉनव्हेज कडे जास्त वळत आहे, तर नॉनव्हेज खाऊ की नाही खाऊ, खावं तर आठवड्यामध्ये किती खाऊ, काय प्रमाण? जनरली हाँ समझ में आ गया। हाँ, जो नॉनवेज हैं वो हिंसक पशुओं के लिए बनाया गया है, बाय गॉड मेड। जो दाने हैं वो पक्षियों के लिए बनाए गए हैं। हमारे लिए भगवान ने हरी पत्तियां उगाई है, हमारे लिए सब्जियां उगाई हैं, फल उगाए हैं और पानी। इस 4 चीज के बाहर हम नहीं जाएंगे, बीमारी आएगी नहीं। नॉनवेज हमारा खुराक नहीं है, शेर का, बाघ का ये खुराक है। हम तो आदी हो गए हैं नॉनवेज के, व्यसन हो गया, एडिक्शन हो गया है, तो हम खाए जा रहे हैं। लेकिन उनसे बीमारी के अलावा कुछ हमें मिलने वाला नहीं है। कोई मसल मैन होता है तो नॉनवेज खा के जिम में जाता है, लेकिन उनको हेल्थ के हिसाब से उनका कोई रिलेशन है नहीं। नॉनवेज खाने वाले लोगों को भी कोलेस्टेरोल बढ़ता है, उनके भी अंग कटवाने पड़ते हैं, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आती रहती है। खास करके एसिड लेवल तो इतना सारा बढ़ जाता है। तो हो सके और थोड़ा मानसिक मनोबल है तो पहले दिन से ही नॉनवेज छोड़ देना चाहिए। वरना दूसरा ऑप्शन ये है कि कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, उनसे बेहतर है कि कुछ करें। सप्ताह में 7 दिन खा रहे हैं तो 5 दिन खाएं, 2 दिन तो छोड़ दें। हाँ, ऐसे कर करके ट्रांसफॉर्मेशन खुद में लाना है। प्रयत्न करायचा। आपने कहा ना, हाँ जी, आपको कुछ इतना दूर से आए हैं, हाँ जी, और इतना बढ़िया सा आपने हमको बताया है, और ये बताया किसके लिए? हमारे खुद के लिए बताया। आपका इसमें तो कुछ फायदा है नहीं, जो भी फायदा होगा हमारा ही होगा। हाँ जी। मैं तो आपको बताता हूँ, बेकरी, मैदा, शुगर, दूध, चाय, कॉफी खत्म आज। अरे वाह। और क्या सक्सेस हो गया आपका विजिट। और और एक बात आपको बताना भूल गया, वो है कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक तो मैं पीता नहीं। अच्छा, मतलब छोड़ने का सवाल ही नहीं है। अच्छी बात है। आप जो है ना, आप का व्यक्तित्व है, हमें अच्छा लगा। एक पॉजिटिवनेस जबरदस्त है आपके अंदर। आप एनर्जेटिक भी है। जनरली बॉस होता है ना, उनका पेट बड़ा हुआ होता है, सेठ लोग होते हैं वो। ये देखिए इधर सेठ आदमी तो मेन जो लीडर है ना, वो तो एकदम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए और फिट होना चाहिए। आप रोल मॉडल है। वो आप एकदम बढ़िया है। आई एम इम्प्रेस्ड बाय यू। थैंक यू सो मच। और आपसे कुछ जो आपने अभी ज्ञान दिया है, हाँ, उससे मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि और थोड़ा फास्ट हो जाऊंगा मैं वेरी आने वाले गुड, दिनों में। वेरी गुड। जरूर जरूर जरूर। वो प्रणाली है इसे। हाँ। जैसे आप बुक पढ़ेंगे ना, तो डेफिनेटली उससे ही ज्यादा हो जाएगा। चला आपण जर मी काय म्हणतोय की तुम्ही बघा, फक्त बहनजींना रस मात्र 1 तासाच्या एनिमा का मैं रिपीट करना चाहूँगा कि एनिमा इज मस्ट एंड फर्स्ट, एंड विदाउट एनिमा आप जो भी कुछ कर रहे हैं, कच्चा खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, लेकिन विदाउट एनिमा इट्स ए क्राइम अगेंस्ट बॉडी। अगर सुबह फास्टिंग कर रहे हैं तो क्राइम हो जाता है। इसलिए पूरा विधि से करना जरूरी है। आधा ज्ञान, लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस थिंग्स। तो आधे से किसी चीज़ को नहीं उठाना है। सुबह एनिमा, फिर उपवास, फिर हरी पत्तियाँ, फिर फल, फिर सब्जियाँ, और रात होते होते कोई बाजरे की या ज्वार की या मक्के की रोटी, सब्जी, दाल, भात, खिचड़ी, कुछ भी आप रात को खा लो एक टाइम।
पूरा चबा के और दबा के दोनों, तो भी आपको कोई हेल्थ के लेवल के ऊपर 100 इयर्स तक इश्यू नहीं आएंगे। मैं दबा के खा ही नहीं सकता सर। हाँ जी, रात में मेरा अभी प्रैक्टिस जो है हाँ खाने का, हाँ, ये अच्छी बात है। हाँ दवा का सब्जेक्ट हाँ, नहीं ओवरऑल जो पब्लिक होती है ना, ओवरऑल 96 था वेट। अच्छा, हाँ हाँ मैंने उसको 70 तक लेके आ गया, लेकिन देखने वाले लोग बता रहे कि अरे यार तू बहुत मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा है। तो अच्छा, फिर अच्छा। 70 से मैं थोड़ा सा उसको अभी 78 79 लाके रखा है, लेकिन अभी वो मेंटेन है, तो अदरवाइज माय वेट वाज अराउंड 96। अच्छा अच्छा, So I am down by almost 20 kgs. बरोबर due to है, this only. बरोबर है। By less eating. That's great, गुरुजी that's ने great. एक बात कही साहेब, त्याने काय म्हणतात ना का, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे रोग लोग? क्या है? ते कोण काय म्हणते त्याचा विचार आपण करायचा नाही, मी करतच नाही. मला मी जर एखाद्या गोष्टीला स्टिकअप आहे तर मी स्टिकअप बनवतो. त्यामुळे मला माझ्या मेरे से ये छूटेगा क्या, तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि छूटेगा ठीक आहे. पक्का. तर असं करूया आता, तर तुम्हाला कधी जर वेळ मिळाला तर तिसऱ्या गल्लीमध्ये ब्रह्मकुमारी केंद्र आहे, उत्तमबाईंचा नंबर घेतलाय. घेतलाय. तर त्यामध्ये काय माहिती आहे का, हा. एनिमासाठी जे काही लागतं मशीन ते आपल्याकडे आहे. बरं. नंतर तुम्हाला ग्रीन ज्यूस घ्यायचं असेल तर त्यासाठी गाळण्यासाठी स्पेशल कापड असतं, ते पण आहे. बरं. आणि 2 पुस्तकं पण हे आणून देते तुम्हाला, तोपर्यंत वाचाल तुम्ही. हो. आणि सिस्टम एनिमा कसं वापरायचं, काय वापरायचं, थोडं ते येऊन त्याला व्यवस्थित समजावून भेटतं की सांगतो. त्याला? हा, म्हणजे कसं ज्यावेळी वेळ मिळेल त्यावेळी त्यांना भेटा, म्हणजे प्रॅक्टिकली थोडं समजावून घेतलं तर मग ते नंतर डिस्टर्ब होत नाही, मग आपण व्यवस्थित करू शकतो. और सर सरांच्या सोबत या म्हणजे हे मिळून आमचे हेच आहेत, ज्ञानात आहेत, त्यामुळे हे लोक येतात. आणि त्याच्या घरा शेजारीच आहे. और सर हमारा जो नेक्स्ट विज़न है ना, वो जो हम नया हेल्थ सेंटर, रेसिडेंस, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सब कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए हमने डिवाइन लाइफस्टाइल चैरिटेबल ट्रस्ट करके एक ट्रस्ट की स्थापना भी की है। तो उसमें लोगों का कंट्रीब्यूशन भी धीरे धीरे आ रहा है। 2000, 5000, 10,000 ऐसे करके हम 1 लाख के करीब पहुंच गए हैं। और हमारी जो ज़मीन हम जहां ऑर्गेनिक फार्मिंग या रेसिडेंस खड़ा करना चाहते हैं, उनका अमाउंट एटलीस्ट मिनिमम 25 to 30 लाख्स के बिटवीन है। तो धीरे धीरे करके हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। लेकिन ये बड़ी कंपनियाँ जो इंडस्ट्रियाँ होती है, उनका 2 साल 3 साल में एक आधा CSR फंड होता है जो सोसाइटी के लिए वो अलग से निकालना पड़ता है। तो हमारे पास 80G हैं, 12A है, सर्टिफिकेट्स हैं। तो ऐसे फंडिंग के लिए आप कोई ऐसी इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियाँ जिन्हें आप परिचय में हैं, तो उनको हमारा प्लीज़ रिकमेंड कीजिए। और यहाँ से भी कभी भी कुछ डिटेल्स है तो मुझे दे दीजिए, मेरा हाँ। नंबर है अभी। हाँ जी, तो उनका पूरा वीडियो ही हमने निकाला है, उसमें हमारे अकाउंट्स नंबर हैं, सभी चीज़ें उसमें डाली है। और हम क्या करना चाहते हैं ना, वो विजुअलाइजेशन पूरा उसमें दिखाया गया है। ठीक है, कोई हाँ issue नहीं। जी जी जी, थँक यू। तुम्ही फक्त आता तर काय झालंय की अभी थोड़ा अंडर इरेक्शन कमिश्निंग फैक्ट्री है अभी इस साल में। हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ। हाँ, अभी महीने शुरू। पहले उसको एक्सपेंड किया है, तो जी, अभी जी। अनसेफ कंडीशन से अंदर। हाँ बरोबर है। तो आप ऊपर मत जाइए, नीचे नीचे उधर गन्ना देखिए, शुगर हाउस देखिए, और ओके मेरे कभी बाद जरूर। में आपको मैं आप जरूर आएंगे तो जरूर पूरा फैक्ट्री दिखाऊंगा, जरूर। क्योंकि अभी थोड़ा अंदर में अनसेफ कंडीशन है। बरोबर तो है। हम लोग को ये क्या है, वी आर फेमिलियर विद दिस कंडीशन, राइट। लेकिन आपके लिए मुझे नहीं चाहिए। थोड़ा नया है, नया है। मैं चाहता हूँ कि आपको अंदर घुमा के कोई रिस्क नहीं लेना। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ, और बहन जी को एक हाँ, ठीक है, मेरा ठीक है। पहुंचाना भी। ओके, थँक्यू सर. नाईस खूप आनंद वाटला. खूप खूप नक्की। नाही, आणि साहेबांनी बघितलं ना, मेंटेन ठेवली आपली तब्येत. नहीं, मला भेटून आनंद झाला। डेफिनेटली आपको बताता हूँ, जो आपने बताया उसमें से मेजॉरिटी पोर्शन आई विल फॉलो। हाँ पक्का।